So hello everyone, we come to the next topic, age problems in word problems of class 10th. Right, so there's an interesting question I'm going to discuss with you. Before starting with the question, one thing that we need to emphasize more in this topic is you must start the question with present age. So it will be easy for us to frame all the conditions if we can start with the present age. So, like I'm going to discuss one question with you. The father's age is six times the son's age. Your father's age is six times the son's age. This is the first condition given to us. And the second condition is that 5 years hence. 5 years hence means after 5 years. So your father's age will be four times. So father's age will be four times son's age. So this is the given criteria is asking us to find their present ages, right? So it's better if you can represent it in the tabular form. This is wonderful. So if you talk about present age, right, age here only present, it's father and it's the son. So if you take present age of father as x and that of son as y, as there are two persons, so I'll make it two variable. Now 5 years hence means after 5 years. So after 5 years, father's age will get increased by 5 years. It will be 5. Son will also be older by 5 years. So his age will be y plus 5. I hope it is known to everyone. Na? After 5 years, 5 और साल add हो जाएंगे. Like in 2020, somebody's age is 10 years. So after 5 years in 2025, the age of that individual will be 15 years plus 5 हो जाएगा. ठीक है. Now according to question, first case, father's present age is 6 times the age of the son. Mark it as first equation. And the second one is after 5 years, father's age. What is the age of father after 5 years? Case 2, x plus 5 will be 4 times the son's age. 4 times, what is the age of the son? Y plus 5. When you simplify this, what do you get? X plus 5 is equal to 4y plus 20. Or you write it like this, x minus 4y is equal to, take this to the right hand side. So 20 minus 5 will be 15. So these are two equations. That is up to us. How do we solve this pair of linear equations? तो चैप्टर 3 से हो गया ये क्वेश्चन. ठीक है सर. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं चाहे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लगाऊं या लीनियर दूसरे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊं या सब्स्टिट्यूशन लगाऊं. सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट 1 इन 2, राइट, तो 1 में से क्या x की वैल्यू 2 में पुट कर दो तो 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 15, राइट. सो 2y इज इक्वल टू हाउ मच? 15 है ना. सो दिस विल गिव यू y is equal to 15 upon 2, right. And if you put this y is 15 upon 2 in first, so from first x is equal to 6 into 15 by 2. So this will be how much? 3 and this is 45, right. So this is 7.5 years है ना. 15 by 2 is what? 7.5 years. तो present age of son seems to be 7.5 years और इसका बनता है 45. कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना. अगर कैलकुलेशंस में गड़बड़ है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट. ठीक है. सो दैट विल बी योर फॉल्ट. और अगर सही है तो मेरा हो गया. ठीक है ना. सो प्लीज चेक. और आफ्टर 5 years ही विल बी 50 एंड ही विल बी 12.5 है ना. सो 12.5 एंड ही विल बी 4 टाइम्स. आज 7.5 साल का है ना वो. तो और फादर कितने का है? 45 के. ये तो 6 टाइम सामने दिख रहा है. 5 साल के बाद बेटे का एज कितना हो जाएगा? 7.5 प्लस 5 12.5. 12.5 साल का हो जाएगा बेटा. एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर दैट टाइम आफ्टर 5 years? आज उसका 45 है. सो आफ्टर 5 सॉरी फादर इज 45, आफ्टर 5 50. तो 50 इज 4 टाइम्स 7.5. ठीक है.
So this is the correct answer. You can verify your answer also, right? So similarly, there is another question. This is a very simple question on level 1 based on the concept of ages. The important thing is that if we know the present age, then if he gives us the condition कि after so many years या so many years ago, तो कुछ नहीं, जितने साल पहले की बात हो रही है तो subtract हो जाएगा. ago का मतलब है माइनस, ठीक है, और after या hence का मतलब है प्लस. So there is another beautiful question. The question is, if Zeba were, there's a character in this question, Zeba, ठीक है, Zeba were 5 years younger by 5 years than what she really is. ठीक है, 5 years younger than her present age, than what she is actually aging. अगर आज उसका एज 10 साल है तो अगर वो उससे 5 साल कम होती तो कितना हो गया, 5. ठीक है, अगर आज उसकी एज 15 साल है तो 5 years younger कितनी हो जाएगी वो, राइट? 5 माइनस हो जाएगा उसमें से, उसकी प्रेजेंट एज में से, than what she really is. Then the square of her age in years would have been 11 more. Square of age, ठीक है, is 11 more than 5 times her actual age. 5 times her actual age. Right? So find the original, or not original, what is the age now? What is age of Zeba now? Simple. So let's consider present age. If I take present age of Zeba as X years, and now if she would have been 5 years younger than her present age, आज का एज कितना उसका, X, ठीक है, सपोज करो आज वो 20 साल की है, एग्जाम्पल रैंडम, तो अगर वो 5 साल कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, 15 एग्जैक्टली. तो x में से 5 कम होगा, सो अगर 5 years यंगर हो जाती है जब वो, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 5, राइट? तो ये कंडीशन बनती है 5 years यंगर. और उसके बाद वो लिखता है इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11. The square of her age would have been 11 more than 5 times, ठीक है, her actual age. 5 times her, this is actual age, ठीक है, 11 more than 5 times her actual age. और अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम होती है, ऑलवेज गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. क्या था इस क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ हर एज इज 11 मोर देन 5 टाइम्स. आप सबसे पहले 5 टाइम्स उसका एक्चुअल एज ले लेते, उसमें क्या करते, 11 मोर कर देते, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाती, ठीक है, स्क्वायर ऑफ हर एज दैट इज 5 years यंगर. सो आई एम अगेन रिपीटिंग इट. अगर आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसको लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ो, उसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, आपकी इक्वेशन फटाफट बन जाएगी. यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट सर? सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. इफ यू लुक एट दिस, यू ओपन दिस स्क्वायर, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह x, b की जगह 5, तो 10x प्लस b स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, इज इक्वल टू 11 plus 5x. So this will be x square. इसको इधर ले जाओ, it will be 15x. इसको भी इधर ले जाओ, so it will be what, plus 14 equals to 0. ठीक है ना? So what is this? Isn't it a quadratic equation? So now this age problem is not from chapter 3. This age problem is from chapter 4. So splitting the middle term कर लो, 15 है तो x square minus 14x minus x plus 14 is equal to 0. So this will give you x common, x minus 14 minus 1 common, x minus 14 equal to 0. This is x minus 14 into x minus 1 equal to 0. So either x is equal to 14
और x इज इक्वल टू 1. सो अगर आज उसकी एज 1 ईयर है तो 5 ईयर एगो वाला केस खत्म हो जाता है. तो ओनली केस, अब 2 ऑप्शन बने ना इसकी एज के, या तो वो 14 ईयर्स की है और या फिर वो 1 ईयर की है. 1 ईयर वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है कि 1 ईयर में वो 5 ईयर्स यंगर नहीं हो सकती. एज तो बर्थ के बाद ही होती है, पता है हम सबको. तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज प्रेजेंट एज इज हाउ मच, 14 ईयर्स. चेक करते हैं. अगर 14 ईयर्स में से 5 माइनस कर देता हूं मैं, 5 साल पुरानी, तो कितनी एज हो जाती है, 9. एंड देन व्हाट ही सेज दैट द स्क्वायर ऑफ हर एज, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज. 5 टाइम्स 14, 70, 70 प्लस 11, 81. 14 में से 5 माइनस करो, 9, 9 का स्क्वायर, 81 एग्जैक्ट. सो इट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ Zeba is how much? 14 years. So this is an interesting one. There's another question. There's another question at present. Now the character here is Asha. Right. So this is question number 6 from chapter 4, 4.4 exercise. At present, Asha's age is 2 more than the square of her daughter's age, Nisha. So another character is Nisha. Let's take the present ages. Right. So what is present age of Nisha? Nisha ka present age, if I take it as x and I take it as y. Simple. ठीक है, मुझे नहीं पता it's a 1 variable question or it is 2 variable question. Not an issue. So what is the first case? At present, Asha's age is 2 more than the square of her daughter's age. Case 1. Asha's age is 2 more than the square of her daughter's age. है ना? तो क्या था, 2 more than square of daughter's age. तो पहले आपने क्या कर लिया, स्क्वायर ऑफ डॉटर्स एज, मोर प्लस कितना 2, बन गया 2 + 5 स्क्वायर. राइट सर. सो दिस इज फर्स्ट केस. ठीक है. व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज. नाउ व्हेन एज ऑफ निशा इज इक्वल टू हाउ मच, x. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, है ना. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है. सब लोग पहले काम करते, इस क्वेश्चन को आगे नहीं चलते, इस पर डिस्कस करते हैं. सपोज करो अगर आज आपकी एज 10 ईयर्स है एंड योर फादर्स एज इज 35 ईयर्स. लेट्स अज्यूम इट. सो व्हेन यू विल बी इक्वल टू योर फादर्स प्रेजेंट एज, आपका एज का, व्हेन योर एज विल बी इक्वल टू योर फादर्स प्रेजेंट एज. आप आज कितने साल के हो, 10 के. पापा कितने के हैं, 35 के. आप 35 के कितने सालों बाद हो गए, ऑब्वियसली आफ्टर 25. तो कैसे पता चला, इट मीन्स what we did was we added the difference. आपकी एज और आपके पापा की एज का जो डिफरेंस है, इससे हमें पता चला कि इतने सालों बाद आपकी जो एज है वो आपके पापा के आज की एज के बराबर हो जाएगी. अब क्वेश्चन कहता है व्हेन निशाज एज विल बी इक्वल टू आयशाज प्रेजेंट एज. ठीक है. आयशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन. उस समय आयशा की एज क्या होगी, जो आयशाज एज होगी, दैट विल बी 1 year less than 10 times present age of Nisha. 10 times present age of Nisha less than 1. ठीक है. Find the present ages of both. Simple. The present ages are to be found. So after how many years will this happen?
So this will happen after difference of the two. तो कितना डिफरेंस है आज दोनों की एज का? It's very simple. So the difference of ages is equal to y minus x. Sorry, I'm so sorry. It is x minus y. क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है मम्मी की एज हमेशा बच्चे की एज से ज़्यादा होती है. सो मम्मा की एज बड़ी है, बड़ी एज में से छोटी एज माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? डिफरेंस आ जाएगा. तो ये फर्स्ट केस था. और सेकंड केस क्या बना? आफ्टर, ठीक है, x माइनस वाई ईयर्स. आफ्टर x माइनस वाई, इतना डिफरेंस ऐड करने के बाद, सो आयशा's एज विल बी व्हाट? आयशा's एज विल बी 10y माइनस 1. सो आयशा's एज विल बी x प्लस x माइनस y, राइट? And that will be equal to 10y minus 1. आयशा की एज में हमने डिफरेंस ऐड कर दिया और that will be 1 less than 10 times the present age of Nisha. Right? खत्म हो गया. So this question is done and dusted. So what do you get from this question is two variable equations है, substitution से elimination हो जाएगी. Solve कर लो इसको. This is x plus x is 2x is equal to how much? 2x minus y आ गया इधर हमारे पास, इसको इधर ले जाओ, is equal to 11y minus 1. ठीक है सर? So this will give you what? 2x minus 11y is equal to minus 1. This is one equation. And what was the other equation? This was the second equation. ठीक है. अब आप यहाँ पे किसको रिप्लेस कर सकते हो? x को रिप्लेस कर सकते हो यहाँ से आप. तो your x minus 2 is equal to y square. ठीक है, राइट? तो x is equal to y square plus 2. तो यहाँ पे ये इक्वेशन पुट कर दो. सो इट विल बी, आई थिंक इफ आई रब ऑफ दिस पोर्शन नाउ, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ट्रिकी लैंग्वेज था, बहुत इतना सिंपल नहीं था जितना हमारे पास अक्सर रहता है. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, minus 11y is equal to minus 1. Splitting the middle term, फैक्टराइजेशन 2y स्क्वायर माइनस 11y, ये हो गया 4 इधर आके, ये हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट सर? सो नाउ यू कैन डू इट बाय द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, यू कैन गेट द आंसर, राइट? अगेन इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स क्या था? इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो इंटरेस्टिंग था, वो थी इसकी लैंग्वेज. और लैंग्वेज थी कि जब मैं तुम्हारी उम्र का हो जाऊंगा, और मैं आपकी उम्र का कब हो जाऊंगा? जब उसमें बड़ा माइनस छोटे का एज को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, तब जाके ऐसा होगा. ठीक है? सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. एग्जाम्पल्स के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो है एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहते हैं. अनदर क्वेश्चन, 2 years ago Slim was thrice as old as his daughter. ये एक सिंपल क्वेश्चन है. लेट्स डू दिस वन ऑल्सो. So there is another question. The question is 2 years ago. दो लोग हैं इस क्वेश्चन के करेक्टर्स, राइट? एक सलीम जी हैं और एक उनकी डॉटर है. ये सलीम साहब आ गए, ठीक है, और ये डॉटर साहिबान आ गई. 2 years ago, 2 साल पहले, ठीक है. आप प्रेजेंट एज ले लो दोनों का, सलीम साहब का x, डॉटर का y. 2 years ago, Slim was thrice as old as his daughter. 2 years ago, सलीम साहब कितने थे? x minus 2. और डॉटर कितनी थी? y minus 2. ठीक है. कंडीशन क्या है? सलीम जी was thrice, that is 3 times as old as his daughter. First case, right sir? And 6 years later, now you talk about 6 years later. मीन्स आफ्टर 6 years सलीम साहब की क्या हो जाएगी एज? x plus 6. और डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y plus 6. ही विल बी 4 years older than twice her age. सो सलीम साहब विल बी 4 years older than, older मतलब more than twice the age of the daughter.
So how many? So what are their present ages? Your question: how old are they now? Simple. So this will be how much? X plus 6 is equal to 2y plus 12 plus 4. So this will give you what? X minus 2y is equal to, ये कितना हो गया? 16, 6 उसमें से चला गया, कितना हो गया? 10. सो हमारे पास, और पहली वाली कंडीशन, इसको मैं अगर सॉल्व करता, ये क्या बनता मेरे पास? x माइनस 2 इक्वल टू 3y माइनस 6. तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, इधर चला जाता -4. तो दो इक्वेशंस है, x माइनस 3y इक्वल टू -4 और दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. सो क्या बन गया? ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? सो वी कैन डू इट क्वाइट इजीली. सो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का कुछ भी ऐसा नहीं था. तो सबसे जो टेक्निकल लैंग्वेज थी वो इससे प्रीवियस वाला था कि जब वो अपनी मम्मी की एज के बराबर हो जाएंगी. देयर इज अनदर क्वेश्चन, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान देना होगा आपको. अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो 1 to 1 थे. जैसे जितनी मेरी एज है और जितनी आपकी एज है, हमारे अंदर जो भी एज का आज रिलेशनशिप है, आफ्टर 5 ईयर्स मैं भी 5 ईयर्स बढ़ूंगा और आप भी कितने बढ़ोगे? 5 ईयर्स. लेकिन यहाँ पे एक बंदे की एज की बात हो रही है उसके दो बच्चों के साथ. 5 सालों बाद सपोज करो, अगर आपके एक, इस क्वेश्चन के लिए पहले जनरल बात करते हैं. हमारे पास ये चाइल्ड 1 है जिसकी एज आज 5 ईयर्स, चाइल्ड 2 की एज है 8 ईयर्स. आफ्टर 5 ईयर्स चाइल्ड 1 कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 ईयर्स. और चाइल्ड 2 कितना हो जाएगा? 8 + 5 13 ईयर्स. इन दोनों की प्रेजेंट एज को ऐड करो, कितना हुआ? 13. इन दोनों की आफ्टर 5 ईयर्स ऐड करो, कितना हुआ? 23. अगर सपोज करो मैं इसको x लेता तो इसको मैं लिखता था 5 ईयर्स के बाद वाला, तो मैं तो +5 ही कर रहा था, लेकिन ये तो प्लस एक और 5 है. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन. क्योंकि 5-5 साल दोनों बच्चों के बढ़ रहे हैं, पहले बच्चे के भी 5 साल बढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे के भी 5 साल बढ़ रहे हैं. सो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर. इट इज 17 क्वेश्चन. द प्रीवियस वन वाज आल्सो फ्रॉम द एग्जाम्पलर, राइट? सो क्वेश्चन है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. एज ऑफ फादर, ये फादर आ गए, ठीक है, और ये कितने हो गए? 2 बच्चे इकट्ठे. इनकी एज अगर आज आप ले लेते हो एक्स फादर की और इनकी प्रेजेंट एज, दोनों का सम, ठीक है. सो दिस इज सम ऑफ एजेस ऑफ 2. कौन से वाली? प्रेजेंट एजेस, ठीक है. वाई? नाउ द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन. Twice the sum of ages. Very simple. The next one is after 20 years. After 20 years, father will be how many years old? X plus 20. And what will be the age of 2 children? The sum of their present ages. पहले बच्चे के 20 साल बढ़ेंगे, दूसरे बच्चे के भी 20 साल बढ़ेंगे, and it will be y plus 40. This is the key step here. I hope it is clear to everyone. I have quoted you example already. ठीक है जी. So this is after 20 years. The age of father will be how much? Will be equal to the sum of ages of the children. So x plus 20 is equal to y plus 40. Right? So this is another condition given to us, and then find the age of the father only. So only age of father is to be found. It means x minus y is equal to, this will go here and it will become 20. Right, sir? So we have got 2 equations. Mark this one as the first, this one as the second. x equal to कितना था? 2y. यहाँ पे पुट कर दोगे, जब x equals to 2y इन सेकेंड में पुट करोगे तो what do you get as 2y minus y is equal to 20. So y is equal to 10, and this will give you that x is equal to 2 into 10. So x is equal to 20. And the present age of father is 20. Right? So this is how it has to be done.
तो इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है प्रेजेंट एज का इसमें जो है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि जब फादर के 20 ईयर्स इंक्रीज होंगे, राइट, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, जब फादर के 20 ईयर्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास उसका भी क्या नाम है अपना, हम बच्चों के 40 ईयर्स इंक्रीज हो जाएंगे. सॉरी, y इज इक्वल टू 10, y इज 10, यू पुट इट हियर, so x is equal to 20 plus 10 equals to 30. So father's age was not 20, father's age was 30 years. ठीक है, so father's is 30 years, right? So this is what is very very important. और आप चेक भी कर सकते हो, what is the present age of father? 30. Now after 20 years, father will be how many years old after 20 years? So father will be 30 plus 20 equals to 50 years, and his two children will be equal to how many years old? So what is the age of this is sum of the ages of two children is 10 plus 20 plus 20 है ना, 50 exactly fine. तो यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया था पहले. सो फादर का प्रेजेंट एज इज 30 years. So I hope it is clear to everyone. So that's all from this topic. So you need to do many more questions based on this. Wish you all the luck.